ہم ایکشن لیں گے۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی پر عمران خان کا معافی مانگنے سے گریز، دھمکی والے الفاظ واپس لینے کو تیار، توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ تحریری جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتا، عدالت تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے، توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جائے۔ عدالت نے عمران خان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے، اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ یہ ٹائم لگے گا۔ ابھی سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم نے یہاں سے کلام تک روڈ کھولنی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے 15 دن میں کھولیں گے، مجھے امید ہے کہ ہم 6 سے 7 دن میں انشاءاللہ کھول لیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سوات، کالام سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیے گئے متاثرین سے ملاقات۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ نقصانات کی اسیسمنٹ کے لیے سروے ضلع انتظامیہ، صوبائی حکومتیں اور فوج مل کر کریں گے۔ کالام میں کافی نقصان ہوا ہے، پل اور ہوٹل تباہ ہوئے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں بھی یہاں ایسے ہی تباہی ہوئی تھی۔ اس وقت سب سے ضروری کالام روڈ کو کھولنا ہے۔ امید ہے 6 سے 7 دنوں میں کالام روڈ کو کھول دیں گے۔ کالام میں اب بحران کی صورتحال نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں تباہیاں پھیرنے کے بعد سیلابی ریلے اب سندھ میں بھی تباہی پھیرنے لگے۔ ضلع دادو میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ دادو کی تحصیل میہڑ، خیرپور، ناطن شاہ اور جوہی کے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ لوگوں کا شہروں سے انخلا جاری۔ میہڑ کے قریب انڈس ہائی وے زیر آب آنے سے پنجاب آنے اور جانے والی ٹریفک معطل۔ ریلے میہڑ شہر اور خیرپور ناطن شاہ شہر کی جانب بڑھنے لگے۔ سیلاب سے جوہی کا بھان سعید آباد سے رابطہ منقطع۔ جوہی شہر کو بچانے کے لیے آخری ڈیفنس لائن رنگ بند کو شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت مضبوط کرنے کا کام جاری۔ خمر شہداد کوٹ میں بھی حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ علاقے میں ہنگامی صورتحال، لوگ اپنے مویشیوں اور بچے کچھ سامان کے ساتھ نقل مکانی کر گئے۔ زیادہ تر کا ٹھکانہ سڑک بنی۔ معصوم بچوں کو لے کر لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ نہ سامان ہے، نہ تبو ہے، نہ کھانا ہے، سامان کہاں سے بنے گا؟ ہم تو بچ گئے، بچوں کو کیسے بچائیں؟ نہ کھانا ہے، نہ صاف پانی۔ جس سیلابی پانی میں مردہ جانور تیر رہے ہیں وہی پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور کے بزرگ عبدالحی کی فریاد نے دل دہلا دیے۔ علاقہ بھنڈ کے کئی گاؤں میں غریبوں کی جھونپڑیاں بہہ گئیں۔ جس سڑک پر پناہ لی وہ بھی زیر آب آنے لگی۔ لوگ امداد کے منتظر۔ بچے سر بک مدن گندی کون یہ ٹوکا تم اللہ سے ترس کرو، کوئی مدد کرو۔ بیٹا وسا کے کاش نن مانا بال بکیا بیٹھن بخار سان دس انتا جگہ کری پیا نہ راشن دین تھا، این سکتے بیٹھا ہوں مانو بھوک تے مرن تھا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ خیرپور میں پیٹ کے مرض میں مبتلا 3 بچوں سمیت 4 افراد انتقال کر گئے۔ دادو میں گیسٹرو میں مبتلا نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ قبرستان زیر آب آنے پر گھر ہی میں تدفین کرنا پڑی۔ سندھ میں 2 روز میں بیماریوں سے متاثرہ افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ 3 لاکھ سے 4,000 سے زائد افراد گیسٹرو، جلدی امراض، ڈینگی، ملیریا، ڈائریا میں مبتلا۔ ضلع ٹانک میں ہی اسٹروک
हैजा, पेट की बीमारियां आम। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी सड़कों पर पनाह लिए सैलाब ज़दगान अपने बच्चों के लिए खुराक और दवाओं के मुंतज़िर। आइंदा 24 घंटे में दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब होगा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कानपुर के करीब चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया किनारे सैकड़ों देहात वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कई मकानात गिर गए। मजीद देहात मुतासर होने के खतरे के बायस इंतजामिया का बस्तियां और देहात खाली करने का ऐलान। लिया में कई नशेबी इलाकों में पानी में डूब गए। 77 स्कूल और 11 मराकज़ सेहत में भी पानी दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। मकान वाला अपने घर की तरफ दौड़ा है अपने मकानों को संभालने के लिए, मगर इतने बेबस हो गए बेचारे कि इनके हाथ में कोई चीज भी नहीं है। बरसों की जमा पूंजी पल भर में सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदम और अनाज भी बर्बाद। डीआई खान के गांव हाजी मोरा में हर घर की एक कहानी। 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल गांव के 80% घर मलबे का ढेर बन गए। 3 भाइयों के 7 मकान भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। घर में मौजूद कोई शय ऐसी नहीं जो इस्तेमाल के काबिल हो। मकानों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी चारपाइयां और चंद पत्थर मौजूद। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिशें। सखर के करीब जो कच्चे का इलाका है और जो दरिया सिंध के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गया है और मुतासरीन सैलाब ये पीछे बहुत से इलाकों में अभी तक फंसे हुए हैं। आपने अभी तक ये जगह क्यों नहीं छोड़ी? कई जगह है ही नहीं सखर में, कहाँ जाए हम? डूबा पड़ा है। हुकूमत को पता है, हुकूमत आती है, इलेक्शन के टाइम आती है हुकूमत, जहाँ पर वोट के लिए आती है, उनको सबको पता है। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है और हम दरिया सिंध में कच्चे के इलाके में फंस चुके हैं, इसलिए कि जो हमारी कश्ती है उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। सखर डूबा हुआ है, पनाह लिए कहीं जगह नहीं, कहाँ जाएं? हुकूमत को मुश्किलात का इल्म है, लेकिन नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। सखर के करीब कच्चे के इलाके में मुतासरीन ने सैलाब की दुहाई। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर की मुतासरीन से बातचीत। हामिद मीर का कश्ती में कच्चे के इलाके का सफर। वापसी पर कश्ती का इंजन भी जवाब दे गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8 बजे जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। तारीखी शहर बहरीन और इसका मशहूर बहरीन बाजार बिल्कुल ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया है और इंतहाई तेज पानी यहाँ पर बह रहा है। फर्स्ट सेंचुरी में स्वात में एक सैलाब आया था, वो इस लेवल का था। वादी स्वात का तारीखी और सयाहती मुकाम बहरीन बाजार दरिया में बदल गया। दरिया और सैलाब का पानी बाजार में बह रहा है। 4 राबिता पुल टूटने से बहरीन और कालाम के दरमियान जमीनी राबिता मुनक़ता। ग़िज़ाई अजनास और दवाम की किल्लत। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाब के बायस गोमल बाजार के देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। खाने पीने की चीजें खत्म, मकीन परेशान। वादी नीलम में आरजी पुल अबूर करते हुए खातून नाले में जा गिरी, तलाश जारी। Today, it is Pakistan. Tomorrow, it could be your country. Thank you. पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से $16 करोड़ की हंगामी बुनियादों पर इमदाद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए मजीद इमदाद की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। सैलाब मुतासरीन के खाने पीने की अशिया तक रसाई मुश्किल हो रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 1100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं।
फूड सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि सैलाब से 10 लाख घर, 20 लाख एकड़ से जायद ज़रई जमीन मुतासिर हुई। फसलों की तबाही, रास्तों की बंदिश, मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर और प्याज के दाम सबसे ऊपर। रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 250 से 300 रुपए तक पहुंच गया। आलू के भाव 120 रुपए तक। लाहौर चैम्बर ने वाहगा के रास्ते सब्जियों की दरामद की फौरी इजाजत का मुतालबा कर दिया। हालिया सैलाब और बारिशों से पाकिस्तान के ज़रई शोबे को 536 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कपास, मकई, चावल, गन्ने, दाल, टमाटर, प्याज समेत दीगर फसलें तबाह हो गयीं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। हतमी रिपोर्ट में ज़राअत और लाइफ स्टॉक का नुकसान 1300 अरब रुपए से जायद का खदशा है। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक्तिसादी राबता कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि प्याज और टमाटर की दरामद से मुकामी मंडी में कीमतों में कमी आएगी। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में वो ऑफल जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, और वही हेलीकॉप्टर्स खान साहब के जलसागाह को ड्राई करने में लगे हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अवाम मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए विफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा, गुज़िश्ता रोज सिंध और बलूचिस्तान के लिए जिस ग्रांट का ऐलान किया गया वो पहले से लगाए गए तखमीनों और फैसलों की बुनियाद पर था। जहां भी सैलाब मुतासिरीन हैं, विफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी पहली तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। सिंध में पानी 1-2 दिन नहीं, महीने तक नहीं निकाल पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ भी सैलाब आया है। हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नौशहरा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि मैं अपने अवाम के साथ हूँ। स्वात, शांगला, चित्राल, DI खान गया। बंद रास्ते खोलने हैं, लोगों को रिलीफ देना है। वज़ीर आला KP का सैलाब से मुतासर इलाके लवरदीर के दौरे में अनोखा अंदाज। वज़ीर आला महमूद खान हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान ही बुलंदी से लोगों को हाथ हिलाते रहे। इसी दौरे में बलामबट में पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आला की गाड़ी का घेराव कर लिया। महमूद खान को गाड़ी से उतरना पड़ा। कारकुनों ने शिकवा किया कि वो सुबह से वज़ीर आला के मुंतज़िर थे, लेकिन महमूद खान उनसे मिले बगैर ही जा रहे थे। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता, $1 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कदर में ₹1.79 की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर भाव $220.12 है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने $1 अरब 10 करोड़ की किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। तवानाई के नुकसान कम करना होंगे। गरीबों को महंगाई से बचाना होगा। मार्केट में बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इक़दाम करार। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म की मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ। कहा, इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी।
IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज्यादा मरतबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। शेख रशीद का IMF कर्ज मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल, कहा हम करोड़ों अफराद की बका की जंग लड़ रहे हैं। सियासतदान अब भी दस्तो गिरेबान हैं, हुक्मरान भी टेलीथॉन कराएं, मकबूलियत का पता चल जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं PTI के गलत फैसलों का बोझ इस हुकूमत ने उठाया। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो IMF से प्रोग्राम लेने के लिए मुश्किल फैसले न लेते। पाकिस्तानी समझदार हैं तो जानते हैं कि कौन मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। अगले चंद दिनों में IMF की रकम जारी हो जाएगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा बुनियादी चीज बोर्ड की जानिब से मंजूरी है। IMF ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसीह की है, रकम भी बढ़ाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सोच के साथ एक कोशिश हुई। वो लोग वाशिंगटन तक पहुंचे हुए थे लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। कहा सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहाली के लिए अरबों रुपए चाहिए। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। IMF ने कहा हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात में बेहतर काम करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरखास्त से जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिल माफी नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस किस को दाखिले की इजाजत होगी, ज़ाब्ता अखलाक जारी। कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान की लीगल टीम और सरकारी वकला के 15 अरकान को इजाजत होगी। 15 कोर्ट रिपोर्टर्स कमरा अदालत में जा सकेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत जारी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल 2:30 बजे होगी। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी और IG को धमकियां देने पर चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको क्या खतरा है। FIA में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का मुराद राफ से सवाल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा FIA ने इंक्वायरी में इतवार के लिए तलबी का नोटिस भिजवाया है। इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील किए जाने का खतरा है। अदालत ने कहा कोई बात नहीं, अब अदालतें हफ्ते और इतवार को भी लगती हैं। मुराद रास को FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में इंक्वायरी के लिए तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली मुअत्तल कर दी। अदालत ने FPA मुअत्तल करके आइस को सरबराह को 15 सितंबर को तलब कर लिया। वापडा और नेपरा को FPA वसूली से रोककर आइंदा समाअत पर जवाब तलब। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं गुज़िश्ता 4 साल मुल्क की तबाही के थे। फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर ₹1 खर्च नहीं किया गया। हर शोबे की कारकर्दगी 0/0 है। IMF का प्रोग्राम सबूताज करने की साजिश में ममनुआ और फॉरेन फंडिंग की कड़ियां मिलती हैं या नहीं, ये मुल्क के इन लोगों से गद्दारी है जो सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $10 अरब से ज्यादा दरकार होंगे।
چین کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کا اعلان، 25,000 خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کا عطیہ۔ چین کی فضائیہ کی پروازیں 300 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچیں گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ کا صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے پیغام۔ سیلاب سے نقصانات پر چینی قیادت نے پاکستان کی قیادت، عوام سے اظہار افسوس اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح چینی قیادت اور عوام نے پاکستان دوستی، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $2 ملین کی امداد کا اعلان کر دیا۔ زیات په خوښ او شوق به وسره راوستل به 300 په 400 به راوستلو بس سبا نه خلکو ډېرې به کیلو سره د سیلاب ول ډېر البوردار کې شاہزدہ کے علاقے چغلزئی بابا کے رہائشی جمیل احمد کو گھر سے زیادہ کبوتر اور خرگوش کے مرنے کا غم، کہتا ہے سیلاب سب بہا کر لے گیا، یہ مجھے جان سے زیادہ پیارے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت برساتی تباہ کاریوں سے جانی اور مالی نقصان کا ازالہ کرے گی۔ سندھ کے تمام 30 اضلاع شدید متاثر ہیں۔ بارشوں سے 860 ارب روپے کے نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کراچی ڈویژن میں سڑکوں، پلوں، نکاسی آب کے تمام نظام سمیت انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، جس کا تخمینہ 50 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ملیریا میں اس وقت برے طریقے سے متاثر ہیں، لیکن وہاں پٹیل صاحب نے آرڈر دیا کہ یہ ملیریا کی چھتریاں جو پکڑی گئی ہیں میٹروکال میں، جو کہ 2020 میں دی گئی، جس نے بھی دیا اس آفیسر کو جو ہے ملیریا کے اور دوسرے جو بھی انوالو ہیں ان کو سزا دو، لیکن مچھردانیاں تو دو۔ میرپور خاص میں بند فیکٹری گودام سے 6.5 لاکھ مچھردانیاں برآمدگی کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم این اے میر منور ٹالپور اپنے وزیر پر برس پڑے، کہا کہ ہمارے اپنے منسٹر فون اٹھانے کو تیار نہیں، یہاں لاکھوں لوگ ملیریا کا شکار ہو رہے ہیں۔ میر منور ٹالپور نے یہ بھی کہا کہ جو ملوث ہیں انہیں سزا دو، لیکن پہلے لوگوں کو مچھردانیاں تو دو۔ 40 کروڑ روپے سے زائد مالک کیے مچھردانیاں 2 روز قبل برآمد کی گئی تھی۔ کراچی سے کم عمر لڑکی کے مبینہ اغوا کا کیس، عدالت نے مرکزی ملزمان ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ ملزمان کو حراست میں لینے کا حکم، لڑکی کا میڈیکل کرانے سے متعلق مدعی کی درخواست منظور۔ ملزمان کے خلاف مہدی کاظمی کی مدعیت میں الفلاح تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ ایشیا کپ T20 میں آج بنگلہ دیش اور افغانستان ٹکرائیں گے۔ افغانستان نے اپنے پہلے میچ میں سری لنکا کو بآسانی شکست دی تھی۔ استاد راحت فتح علی خان کی لندن میں پرفارمنس، کہا پاکستان کے فنکار گرینڈ شو کر کے تمام رقم سیلاب زدگان کے لیے وقف کریں گے۔ اور بھارتی ریاست آسام میں ہاتھی شہر کی سیر کو نکل آیا، راستے میں کھڑی بائک کو لات مار کر گرا دیا۔